بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبۃ امیر المومنین امام علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 81۔ موت اور موت کے بعد کی حالت، انسانی خلقت کے درجات اور پند و نساء۔ اس خطبے کا نام خطبہ گرا ہے، جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے عجیب و غریب خطبوں میں شمار ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے، ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت و ابتلا کا دور کرنے والا ہے۔ میں اس کے کرم کی نوازشوں اور نعمت کی فرمانروائیوں کی بنا پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں چونکہ وہ اول و ظاہر ہے، اور اس سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں چونکہ وہ قادر و توانا ہے، اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں چونکہ وہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد و رسول ہیں، جنہیں احکام کے نفاذ اور حجت کے تمام اور عبرتناک واقعات پیش کر کے پہلے سے متنبع کر دینے کے لیے بھیجا۔ خدا کے بندو، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کیں اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے، تمہیں مختلف لباسوں سے ڈھانپا اور تمہارے رزق کا سامان مہیا کیا۔ اس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا مقرر کی ہے، اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراغ عطائیوں سے نوازا اور موثر دلیلوں سے تمہیں متنبع کر دیا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے، اور اس مقام آزمائش و محل عبرت میں اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں۔ اس میں تمہاری آزمائش ہے، اور اس کی درآمد و برآمد پر تمہارا حساب ہوگا۔ اس دنیا کا گھاٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا ظاہر خوشنما اور باطل تباہ کن ہے۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پہ دے مارتی ہے اور اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے، اور اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے، اور اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تار قبر اور وحشتناک منزل تک لے جاتی ہے، کہ جہاں سے وہ اپنا ٹھکانہ جنت یا دوزخ دیکھ لے اور اپنے کیے کا نتیجہ پا لے۔ بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلوں کی سی ہے، نہ موت کاٹ چھانٹ سے منہ موڑتی ہے، اور نہ باقی رہنے والے گناہ سے باز آتے ہیں۔ باہم ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں، اور یکے بعد دیگرے منزل منتہا و مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگام آ جائے گا، تو اللہ سب کو قبروں کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندے کے پوٹوں اور ہلاکت گاہوں سے نکال لے گا۔ گروہ در گروہ، سامت و ساکت، اسادہ و صف بستہ امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے باز گشت کی جانب دوڑتے ہوئے، نگاہ قدرت ان پر حاوی اور پکارنے والے کی آواز ان سب کے کان میں آتی ہوگی۔ وہ ضعف و بے چارگی کا لباس پہنے ہوں گے، اور عجز و بے کسی کی وجہ سے ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ ہیلے اور ترکیبیں غائب اور امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی۔ دل مایوسانہ خاموشیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں گی، پسینہ منہ میں پھندا ڈال دے گا، وحشت بڑھ جائے گی، اور جب انہیں آخری فیصلہ سنانے، عملوں کا معاوضہ دینے اور عذاب و عقوبت اور اجر و ثواب کے لیے بلایا جائے گا، تو پکارنے والے کی گرج دار آواز سے کان لرز اٹھیں گے۔ یہ بندے اس کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لیے وجود میں آئے ہیں، اور غلبہ و تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ نزاع کے وقت ان کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں اور قبروں میں رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے
और फिर कब्रों से अकेले उठाए जाएंगे और अमलों के मुताबिक जजा पाएंगे और सबको अलग अलग हिसाब देना होगा। इन्हें दुनिया में रहते हुए गुलू खलासी का मौका दिया गया था और सीधा रास्ता भी दिखाया जा चुका था। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए मोहलत भी दी गई थी। शक शुबहात की तारीकियां इनसे दूर कर दी गई थीं और इस मुद्दत हयात तो अमाजगाए अमल में इन्हें खुला छोड़ दिया गया था ताकि आखिरत में दौड़ लगाने की तैयारी करें और सोच विचार से मकसद की तलाश कर लें और इतनी मोहलत पाएं जितनी फ़ायदे के हासिल करने और अपनी आइंदा मंजिल का समान करने के लिए ज़रूरी है। ये कितनी ही सही मिसालें हैं और शिफा बख्श नसीहतें हैं, बशर्ते कि इन्हें पकीज़ा दिल और सुनने वाले कान और मजबूत राहें और होशियार अक्लें नसीब हों। अल्लाह से डरो, इस शख्स की मानद जिसने नसीहत की बातों को सुना तो झुक गया, गुनाह किया तो इसका इतराफ़ किया, डरा तो अमल किया, खौफ किया तो नेकियों की तरफ बढ़ा, क़यामत का यकीन किया तो अच्छे अमाल बजा लाया। इबरतें दिलाई गईं तो इसने इबरत हासिल की और खौफ दिलाया गया तो बुराइयों से रुक गया और अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कही तो फिर इसकी तरफ रुख मोड़ लिया और इसकी तरफ तौबा व अनाबत के साथ मुतवज्जे हुआ। अगलों की पूरी पूरी पैरवी की और हक के दिखाए जाने पर इसे देख लिया। ऐसा शख्स तलबे हक के लिए सरगर्म अमल रहा और दुनिया के बंधनों से छूटकर भाग खड़ा हुआ। इसने अपने लिए ज़हीरा फराहम किया और बातन को पाको साफ रखा और आखिरत का घर इबाद कर लिया। सफ़र आखिरत और इसकी राय नूरदी के लिए और इख्तियाज के मौका और फ़क्र फाका के मकामात के पेश नज़र इसने ज़ात अपने हमरा बार कर लिया है। अल्लाह के बंदो, अपने पैदा होने की गर्ज़ो गायत के पेश नज़र इससे डरते रहो और जिस हद तक इसने तुम्हें डराया है इस हद तक इससे खौफ खाते रहो और इससे इसके सच्चे वादे का इफ़ा चाहते हुए और होले क़यामत से डरते हुए इन चीज़ों का इस्तेहकाक पैदा करो जो इसने तुम्हारे लिए मुहैया कर रखी हैं। इसी खुतबे ही के ये भी अल्फाज हैं, इसने तुम्हारे लिए कान बनाए ताकि ज़रूरी और अहम चीज़ों को सुनकर महफूज रखें और इसने तुम्हें आंखें दी हैं ताकि वो कोरियो बेबसरी से निकलकर रोशन व ज़ियाबार हों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जिनमें से हर एक में बहुत से अज़ा हैं जिनके पिछोकम इनकी मुनासबत से हैं और अपनी सूरतों की तरकीब और उम्र की मुद्दतों के तनासब के साथ साथ ऐसे बदनों के साथ जो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं और ऐसे दिलों के साथ हैं जो अपनी ग़ज़ाए रूहानी की तलाश में लगे रहते हैं, अलावा दीगर बड़ी नेमतों और एहसानमंद बनाने वाली बख्शिशों और सलामती के हसारों के। और इसने तुम्हारी उम्रें मुकर्रर कर दी हैं जिन्हें तुमसे मख्फी रखा और गुज़िश्ता लोगों के हालात व वाक़यात से तुम्हारे लिए इबरत अंदोज़ी के मौके बाकी रख छोड़े हैं। ऐसे लोग जो अपने ख़त व नसीब से लज़्ज़त अंदोज़ थे और खुले बंदो आज़ाद फिरते थे, किस तरह उम्मीदों के बराने से पहले मौत ने इन्हें जा लिया और उम्र के हाथ ने इन्हें इन उम्मीदों से दूर कर दिया। उस वक्त इन्होंने कुछ सामान न किया था जबकि बदन तंदुरुस्त थे और उस वक्त इबरत व नसीहत हासिल न की जबकि जवानी का दौर था। क्या ये भरपूर जवानी वाले कमर झुका देने वाले बुढ़ापे के मुंतज़िर हैं और सेहत की तरोताज़गी वाले टूट पड़ने वाली बीमारियों के इंतज़ार में हैं और ये ज़िंदगी वाले फना की घड़ियां देख रहे हैं जब चल चलाओ का हंगाम नज़दीक और कूच करीब होगा और बिस्तरे मर्ग पर कल को इस्तराब की बेकरारियां और सोजश व तपश की बेचानियां और लुआबे दहन के फंदे होंगे और अजीज़ो कारब और औलादो अहबाब से मदद के लिए फरियाद करते हुए इधर उधर करवटें बदलने का वक्त आ गया होगा। तो क्या करीबियों ने मौत को रोक लिया है या रोने वालियों के रोने से कुछ फ़ायदा पहुंचा? इसे तो कब्रिस्तान में कब्र के एक तंग गोशे के अंदर जकड़ बांध कर अकेला छोड़ दिया गया है। सांप और बिच्छुओं ने इसकी जिल्द को छलनी कर दिया है और वहाँ की पामालियों ने इसकी तरोताज़गी को फना कर दिया है। आंधियों ने इसके आसार मटा डाले हैं और हादसात ने
इसके नशानात तक महव कर दिए हैं। तरोताज़ा जिस्म लागर व पिसर मर्दा हो गए, हड्डियाँ गल सड़ गईं और रूहें गुनाह के बारे गिरा के नीचे दबी पड़ी हैं और गैब की खबरों पर यकीन कर चुकी हैं, लेकिन इनके लिए अब ना अच्छे अमलों में इजाफे की कोई सूरत और ना बदअमालियों से तौबा की कुछ गुंजाइश है। क्या तुम इन्हीं मर चुकने वालों के बेटे, बाप, भाई और करीबी नहीं हो? आखिर तुम्हें भी तो हूबहू इन्हीं के हालात का सामना करना और इन्हीं की राह पर चलना है और इन्हीं की शाहराए गुज़र पर से गुज़रना है, मगर दिल अब भी ख़तो सादत से बेरग़बत और हदायत से बेपरवाह हैं और गलत मैदान में जा रहे हैं, गोया इनके अलावा कोई और मुराद और मुखातिब है और गोया इनके लिए दुनिया ही समेट लेना सही रास्ता है। याद रखो कि तुम्हें गुज़रना है सरात पर और वहाँ की ऐसी जगहों पर जहाँ कदम लड़खड़ाते हैं और पैर फिसल जाते हैं और कदम कदम पर खौफ व दहशत के ख़तरात हैं। अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह वो मर्द ज़री को दाना डरता है कि जिसके दिल को उकबा की सोच विचार ने और चीज़ों से गाफिल कर दिया हो और खौफ ने इसके बदन को ताबो कुल्फत में डाल दिया हो और नमाज शब ने इसकी थोड़ी बहुत नींद को भी बेदारी से बदल दिया हो और उम्मीदो सवाब में इसके दिन की तपती हुई दोपहरें प्यास में गुजरती हों और ज़ोहदो वरा ने इसकी ख्वाहिशों को रोक दिया हो और ज़िक्र इलाही से इसकी ज़बान हर वक्त हरकत में हो। ख़तरों के आने से पहले इसने खौफ खाया हो और कटी फटी राहों से बचता हुआ सीधी राह पर हो लिया हो और वो राह मकसूद पर आने के लिए सीधा रास्ता इख्तियार किया हो और ना खुश फरेबियों ने इसमें पीछो ताप पैदा किया हो और ना मुतशाबा बातों ने इसकी आंखों पर पर्दा डाला हो। बशारत की खुशियों और नेमत की आसाइशों को पाकर मीठी नींद सोता है और अमनो चैन से दिन गुजरता है। वो दुनिया की अबूरगाह से काबिल तारीफ सीरत के साथ गुजर गया और आखिरत की मंजिल पर सादतों के साथ पहुंचा। वहाँ के ख़तरों के पेश नज़र इसने नेकियों की तरफ कदम बढ़ाया और अच्छाइयों के लिए इस वक्फ़ा हयात में तेज़ गाम चला। तलब आखिरत में दिलजोई और रग़बत से बढ़ता गया और बुराइयों से भागता रहा और आज के दिन कल का ख्याल रखा और पहले से अपने आगे की ज़रूरतों पर नज़र रखी। बख्शिश अता के लिए जन्नत और अकाबो अज़ाब के लिए दोज़ख से बढ़कर क्या होगा और इंतकाम लेने और मदद करने के लिए अल्लाह से बढ़कर कौन हो सकता है और सनद व हुज्जत बनकर अपने खिलाफ सामने आने के लिए कुरान से बढ़कर क्या है। मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ जिसने डराने वाली चीज़ों के ज़रिए उज़र तराशी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रखी और सीधी राह दिखाने और हुज्जत तमाम कर दी और तुम्हें इस दुश्मन से होशियार कर दिया जो चुपके से सीनों में नफूस कर जाता है और कानाफूसी करते हुए कानों में फूंक देता है। चुनाचा वो गुमराह करके तबाह बर्बाद कर देता है और वादे करके तुफल तसलियों से ढारस बंधाता रहता है। पहले तो बड़े से बड़े जुर्मों को सवार कर सामने लाता है और बड़े बड़े मोहलक गुनाहों को हल्का और शुभ करके दिखाता है और जब बहकाए हुए नफ्स को गुमराही में लगा देता है और इसे अपने फंदों में अच्छी तरह जकड़ लेता है तो जिसे सजाया था उसको बुरा कहने लगता है और जिसे हल्का और शुभ दिखाया था इसकी ग्रां बारी और अहमियत बताता है और जिससे मुतमिन और बेखौफ किया था इससे डराने लगता है। इसी खुतबे का एक जुज़ ये है कि जिसमें इंसान की पैदाइश का बयान है। या फिर इसे देखो जिसे अल्लाह ने माँ के पेट की अंधेरियों और पर्दे की अंदरूनी तहों में बनाया, जो एक जरासीम हयात से छलकता हुआ नुत्फ़ा और बेशक्ल सूरत मुनमिन खून था, फिर इंसानी खदोखाल के सांचे में ढलकर जनीन बना और फिर तिफले शीरख्वार और फिर हद रज़ायत से निकलकर तिफले नोखेज़ और फिर पूरा पूरा जवान हुआ। अल्लाह ने इसे निगहदाश्त करने वाला दिल और बोलने वाली ज़ुबान और देखने वाली आंखें दी ताकि इबरत हासिल करते हुए कुछ समझे बूझे और नसीहत का असर लेते हुए बुराइयों से बाज रहे। मगर हुआ ये कि जब इसके अज़ा में तवाज़न और इत्तदाल पैदा हो गया और इसका कदो कामत अपनी बुलंदी पर पहुंच गया
तो गुरूर और सरमस्ती में आकर हदायत से भड़क उठा और अंधाधुंध भटकने लगा। इस तरह के रंदियो हवसनाकी के डोल भर भर के खींच रहा था और नशातो तरब की कफियतों और हवसबाजी की तमन्नाओं में पूरा जान खपाए हुए था। ना किसी मुसीबत को खातिर में लाता था, ना किसी डर अंदेशे का असर लेता था। आखिर इन्हीं शोरदगियों में गाफल मदहोश हालत में मर गया और जो थोड़ी बहुत जिंदगी थी इसे बेहुदगियों में गुजार गया। ना सवाब कमाया, ना कोई फरीज़ा पूरा किया। अभी वो बाकी मांदा सरकशियों की राही में था कि मौत लाने वाली बीमारियों ने इस पर आ लिया और इसने रात अंधुओं मुसीबत की कुल्फतों और दर्दो अलाम की सख्तियों में जागते हुए इस तरह गुजार कि वो हकीकी भाई, मेहरबान बाप, बेचैनी से फरियाद करने वाली माँ और बेकरारी से सीना कूटने वाली बहन के सामने सकरात की मदहोशियों और सख्त बदहवासियों और दर्दनाक चीखों और सांस उखाड़ने की बेचैनियों और नज़ाह की दरमांदा कर देने वाली शिद्दतों में पड़ा हुआ था। फिर इसे कफन में नामरादी के आलम में लपेट दिया गया और वो बड़े चुपके से बिला मज़ाहमत दूसरों की नकलो हरकत का पाबंद रहा। फिर इसे तख्ते पर डाला गया इस आलम में कि वो मेहनत व मशक्क़त से खस्ता हाल और बीमारियों के सबब निढाल हो चुका था। इसे सहारा देने वाले नौजवानों और तावन करने वाले भाइयों ने कांधा देकर परदेस के घर तक पहुंचा दिया कि जहां मिलो मुलाकात के सारे सिलसिले टूट जाते हैं और जब मशायत करने वाले भाई और मुसीबत ज़दा अजीज़ों का रब पलट आए तो इसे कब्र के गड़े में उठाकर बिठा दिया गया। फरिश्तों के सवाल जवाब के वास्ते, सवाल की दहशतों और इम्तहान की ठोकरें खाने के लिए, और फिर वहाँ की सबसे बड़ी आफत खोलते हुए पानी की मेहमानी और जहन्नम में दाखिल होना है। और दोज़ख की लिपटें और भड़कते हुए शोलों की तेजियां हैं। ना इसमें राहत के लिए कोई वक्फा है और ना सुकून और राहत के लिए कुछ देर के लिए बचाव है। ना रोकने वाली कोई कुव्वत है और ना अब सुकून देने वाली मौत, ना तकलीफ़ को भुला देने के लिए नींद, बल्कि वो हर वक्त किस्म किस्म की मौतों और घड़ी घड़ी के नित नए अजाबों में होगा। हम अल्लाह ही से पनाह के ख्वास्तगार हैं। अल्लाह के बंदो, वो लोग कहाँ हैं जिन्हें उम्रें दी गई थीं तो वो नेमतों से बहरायाब होते रहे, और इन्हें बताया गया था तो वो सब कुछ समझ गए, और वक़्त दिया गया तो इन्होंने वक्त गफलत में गुजार दिया, और सही सालम रखे तो इस नेमत को भूल गए। इन्हें लंबी मोहलत दी गई थी, अच्छी अच्छी चीज़ें भी इन्हें बख्शी गई थीं। दर्दनाक अजाब से इन्हें डराया भी गया था और बड़ी चीज़ों के इनसे वादे भी किए गए थे। तो अब तुम ही वर्ताए हलाकत में डालने वाले गुनाहों और अल्लाह को नाराज़ करने वाली खताओं से बचते रहो। ए चश्मोगोश रखने वालों, ए सेहतो सरवत वालों, क्या बचाव की कोई जगह या छुटकारे की कोई गुंजाइश है, या कोई पनाहगाह या ठिकाना है? भाग निकलने का मौका या फिर दुनिया में पलट कर आने की कोई सूरत है? अगर नहीं है तो फिर कहाँ भटक रहे हो और किधर का रुख किए हुए हो, या किन चीज़ों के फरेब में आ गए हो? हालांकि इस लंबी चौड़ी ज़मीन में तुम में से हर एक का हिस्सा अपने कद भर का टुकड़ा ही तो है, जिसमें वो मिट्टी से अटा हुआ रुखसार के बल पड़ा होगा। ये अभी गनीमत है खुदा के बंदो, जबकि गर्दन में फंदा नहीं पड़ा हुआ और रूह भी आज़ाद है। हदायत हासिल करने की फुर्सत और जिस्मों की राहत और मजलिसों के इज्तिमा और ज़िंदगी की बकाया मोहलत और असर नो इख्तियार से काम लेने के मौके और तौबा की गुंजाइश और इत्मीनान की हालत में कबल इसके कि तंगियो ज़िक में पड़ जाए और खौफो इज़्महाल इस पर छा जाए, और कबल इसके कि मौत आ जाए और कादर व गालब की गिरफ्त इसे जकड़ ले। सैयद रज़ी फरमाते हैं कि वारद हुआ है कि जब हज़रत ने ये खुतबा इरशाद फरमाया तो बदन लरज़ने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, आँखों से आंसू बह निकले और दिल कांप उठे। बाज़ लोग इस खुतबे को खुतबा गिरा के नाम से याद करते हैं।